बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 4 and the period is English language teaching ELT and I am your ELT teacher. Okay, this is our first video of second semester final exam. In this video we will revise the stuff of second semester final exam. As you know that we had started second semester in our online classes when the school were open, and we had completed second semester final term. After the second semester final term we had started second semester midterm final term we had completed second semester midterm in our physical classes, but as you know that as per the government announcement the school were closed, so we had started second semester final term in our online classes. Okay, we had completed second semester final term. Now we are starting the video session regarding the second semester final exam. Okay, in this video we will revise all the stuff of second semester midterm plus final term for exam. Okay, so basically this is our revision video. So come to the today's class topic, what we revised today. Well, come to the today's class topic. Our topics to be described today. I will describe the topic preposition, conjunction, interjection, and from the language section we have oral question answer today. You have already studied this topic. Okay, preposition you had studied in your physical classes. Conjunction and interjection we had taught you in our online classes. So in today's class video I will revise these topics from grammar section, preposition, conjunction and interjection, and from language portion today we have oral question answer. Before starting the today's class video revision, let's discuss the second semester final content. So you should know from where and which chapter you will study for second semester final exam. So it is very important to discuss second semester final exam. So take out your content, examination content that is providing you from the school. This is your second semester content final exam, and second semester final exam work is also mentioned in this content. So take out this content and read it with me. So you should know which units and chapters you will prepare for second semester final exam. Okay students, so this is your content, second semester final exam session 2020 and 21. शेड्यूल एंड कंटेंट, ड्यूरेशन 22 अप्रैल टू 12 मई। इसमें आपके पास जो फाइनल टर्म का सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम था जिसे हमने ऑनलाइन क्लास में कंडक्ट किया था बिकॉज फिजिकल क्लासेस वर सस्पेंडेड ड्यू टू द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। सो आपको इसमें से वो सारा काम भी मिल जाएगा, प्लस आपके पास इसमें क्या है सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन कंटेंट भी आपको गिवन है कि आपने सेकंड सेमेस्टर फाइनल के जो एग्ज़ाम होंगे मिड टर्म और फाइनल टर्म के टॉपिक्स को मर्ज करके आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, इसमें से आपने प्रिपरेशन करनी है फॉर एग्ज़ाम। सो ओपन इट एंड कम टू द योर सब्जेक्ट ELT. Okay, so here it is your subject English language teaching ELT, and this is your content you will prepare for second semester final exam according to this content. ठीक है ना, जो जो टॉपिक आपके पास मेंशन है सिर्फ आपने उन्हें ही प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। मिड टर्म और फाइनल टर्म को मर्ज करके आपके पास पेपर आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ प्रिस्क्राइब टाइटल बुक रेन मार्टिन प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, यानी कि जो आपके पास बुक है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये जो आपके पास बुक है रेन मार्टिन प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, सबसे पहले आपके पास इस बुक्स के टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है,
सो ये आपके पास बुक है, इस बुक को आपने रखना है, ठीक है। सो नाउ कम टू द यूनिट नंबर 1, द फर्स्ट यूनिट दैट इज इंक्लूड इन सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम इज यूनिट नंबर 11, चैप्टर प्रीपोजिशन एंड चैप्टर 43 व्हाट आर प्रीपोजिशंस, कि प्रीपोजिशन क्या है, विद एक्सरसाइजेस 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बुक दिखाई है, ये आपके पास बुक है रन एंड मार्टिन, ठीक है। इसमें आपके पास कौन सा है, यूनिट नंबर 11 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपने याद करना है अच्छे से विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, प्लस आपके पास रिलेटेड टू दिस टॉपिक एक्सरसाइज 4, 5 और 6 रिलेटेड है, ठीक है ना, इस टॉपिक से, इसे भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये आपकी एक्सरसाइज, मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग ताकि एक्सरसाइज को निगलेक्ट नहीं करो बल्कि इन्हें भी साथ साथ प्रिपेयर करो। एक्सरसाइज 4, बुक एक्सरसाइज नंबर 4 फ्रॉम द प्रीपोजिशन टॉपिक, ये आपके पास इंक्लूड है, इसे अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस, कि आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, इसमें आपने प्रीपोजिशन को पुट करना है, ठीक है। देन आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5 भी इंक्लूड है। एक्सरसाइज नंबर 5 में आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। अगेन आपके पास एक्सरसाइज 4 और 5 बिल्कुल सेम है, आपके पास ब्लैंक्स दी गई हैं जिसमें आपने प्रीपोजिशन को पुट करना है। देन आपके पास कौन सी है, एक्सरसाइज 4, 5, 6 भी आपके पास इंक्लूड है, ठीक है ना। 6 में अगेन आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, कि अगेन आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए जैसे आपने प्रीपोजिशन से पुट करना है, ठीक है। 6 आपके पास इंक्लूड है, प्लस आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7 भी इंक्लूड है, ठीक है। व्हाट टू डू इन एक्सरसाइज नंबर 7, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, अगेन आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ ब्लैंक्स दी गई है जिसमें आपने प्रीपोजिशन को पुट करना है, ठीक है। ये तमाम एक्सरसाइज आपके पास इंक्लूड है, जब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रीपोजिशन पे कमांड मिल जाएगी, आपको और ज़्यादा प्रीपोजिशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड आज की क्लास में हम इस टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब आ जाएँ, कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन का काम भी आपके पास इंक्लूड है। कंजंक्शन का वर्क आपके पास सेकंड सेमेस्टर फाइनल के कंटेंट में, यानी कि इसी कंटेंट में प्रोवाइड है। प्रीपोजिशन का वर्क आपके पास जो आपको फिजिकल क्लासेस में करवाया गया था वहाँ से आप इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास है कंजंक्शंस, ठीक है। कंजंक्शन की बुक एक्सरसाइज आप देखने कौन सी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब अपनी अपनी बुक पे पहले इसको साथ साथ मैच भी कर लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपके टॉपिक है यूनिट नंबर 12 कंजंक्शन, और कंजंक्शन के आपके पास कौन कौन सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1, व्हाट टू डू इन दिस एक्सरसाइज, पिक आउट द कंजंक्शन, कि आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने उसमें से जो भी कंजंक्शन है यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं उन्हें पिक करना है। देन एक्सरसाइज नंबर 2, पिक आउट द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल विच वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड आर ज्वाइंड बाय ईच अदर। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कंजंक्शन को पिक करना है इस एक्सरसाइज में, और फिर ये बताना है कि कौन से वर्ड्स और सेंटेंसेस को ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ यू एंड आई आर क्लास फेलो। इस सब आपके पास सेंटेंस में एन आपके पास कंजंक्शन है, और कंजंक्शन को यू एंड आई ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है एन, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। फिर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसमें आपने क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शन, कि आपको ब्लैंक्स दी गई है जिसमें आपने कंजंक्शन पुट करने हैं। देन कम फॉरवर्ड एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज 4 में आपने क्या करना है कि ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस विद एन और बट, ठीक है। कि आपको सेंटेंसेस दिए हुए इन्हें आपने कंजंक्शन वर्ड एन और बट को यूज़ करते हुए दो सेंटेंसेस को एक करना है। फॉर एग्जाम्पल राशिद हैज़ अ बैट, ही हैज़ अ बॉल, ठीक है। राशिद के पास बैट भी है और बॉल भी है, तो यहाँ पे ही हैज़ को हम अंडरलाइन करके एन कर देंगे, यानी कि कंजंक्शन एन लगा के हम इसको एक सेंटेंस बना देंगे। थ्रू सेंटेंस क्या हो गया, राशिद हैज़ अ बैट एंड बॉल, ठीक है। ये थी आपके पास कंजंक्शन की एक्सरसाइजेज। अब इसके बाद आइए और टॉपिक पे। फिर आपके पास है इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एग्ज़ाम, ओके। एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 रिलेटेड फ्रॉम दिस टॉपिक, आपने एक्सरसाइज 1 और 2 को भी प्रिपेयर करना है फॉर कंजंक्शन इंटरजेक्शन, सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास है यूनिट नंबर 13 इंटरजेक्शन। बुक एक्सरसाइज आप देख लें। एक्सरसाइज नंबर 1 आपने क्या करना है, अच्छा एक्सरसाइज नंबर 1 के आपके पास 2 पार्ट हैं, ए और बी। फर्स्ट में आपने क्या करना है, पिक आउट द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस गिवन है, आपने सिंपल उसमें इंटरजेक्शन को पिक करना है। अभी हम आपको रिवाइज भी करेंगे कि व्हाट आर
interjection. Then come to the B part of exercise 1. Fill the blanks with suitable interjection from the boxes. फिर आपको कुछ interjection दिए हुए हैं boxes में, आपने इन interjection को choose करना है कि किस में कौन सा आएगा, ठीक है ना। हो रे, आउच। तो सबसे पहले आपके पास है डैश वॉक क्वाइटली। तो जब आपको कहा जाए कि खामोशी से वॉक करो, यानी कि वॉक क्वाइटली। फिर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल इंटरजेक्शन। अगेन आपको चॉइस दी हुई है जिसको आपने सूट करना है कि किस में कौन सा आपके पास इंटरजेक्शन आएगा, ठीक है। ये थी आपके पास इंटरजेक्शन। फिर आपके पास है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में आपके पास है व्हाट इज सेंटेंस, आपको सेंटेंसेस, एंड देन काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस एज आई टोल्ड यू इन आर फिजिकल क्लासेस पढ़ाया गया था आपको कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने 5 काइंड्स को प्रिपेयर करना है और हर सेंटेंस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपने उसे प्रिपेयर करना है फॉर सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम। then you know कि in our English language teaching in this subject we are also learning the tenses, because tenses आपको बताते हैं कि किस सेंटेंस को किस टेंस या जुमला आपके पास है जो वक्त है, ठीक है ना, वो काम कब किया गया है। तो टेंसेस में हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में आपके पास है परफेक्ट टेंसेस को हमने अच्छे से पढ़ा है, इसे रीड किया है इन आर फिजिकल क्लासेस। तो आपने कौन कौन से टेंसेस प्रिपेयर करने, ओनली परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट की जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव विद उर्दू ट्रांसलेशन, पास्ट परफेक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव विद उर्दू ट्रांसलेशन, देन फ्यूचर परफेक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव विद उर्दू ट्रांसलेशन। तो कंप्लीट आपने परफेक्ट टेंस को प्रिपेयर करना है फॉर सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम। एंड द लास्ट फिर आपके पास है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन आपके पास क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन मीन्स आपका अपना क्रिएटिव वर्ड, ठीक है ना, जो आप खुद से क्रिएट करते हो, आप अपनी थिंकिंग के ऊपर जो आपकी बेस करता है उसे हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन में हमारे पास क्या है, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड इन्विटेशन। इन 3 टॉपिक्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। Okay, now come forward. As you know that our subject is divided into 2 parts. One is for learning and the second one is for your oral practice. ठीक है ना, कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लर्निंग में और ग्रामर प्रैक्टिस में, और दूसरा स्पीकिंग में, ठीक है। तो स्पीकिंग पे आ जाएंगे आपने कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास टॉपिक हैं, ठीक है। नंबर 1 आपके पास है डायलॉग परफॉर्मेंस। डायलॉग परफॉर्मेंस मीन्स कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन पेज 64 मीन्स कि जो आपको डेंजर वाली कॉन्वर्सेशन करवाई गई थी, ठीक है ना, वो आपने याद करनी है अच्छे से सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम के लिए। और फिर आपके पास है कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स एट द जिम। फिर आपके पास है टॉक एंड पेयर। टॉक एंड पेयर भी अगेन आपके पास इज जस्ट लाइक अ पेयर एक्टिविटी आपके पास होती है, जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। फिर इसमें टॉक एंड पेयर में आपके पास कौन कौन से इंक्लूड है, पेज नंबर 63 और 67 की जो आपकी कॉपी में है, सेकंड सेमेस्टर की है ये, सेकंड सेमेस्टर मिड टर्म का वर्क है ये, ठीक है। फिर आपके पास है टॉक एंड पेयर अबाउट फिल्म यू हैव सीन। ये आपके पास फाइनल से इंक्लूड है, यानी फाइनल और मिड टर्म दोनों को मर्ज करके आपके पास सीन पेपर आएगा। फिर आपके पास है ओरल क्वेश्चन आंसर, जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्पीकिंग टॉपिक है आपके पास है एनिमल इन डेंजर और माय पेट, और लास्ट में आपके पास है लिसनिंग, ठीक है। सो ये है आपका सेकंड सेमेस्टर फाइनल का कंटेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, सो दैट वाज आवर सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम कंटेंट। आई होप यू हैव गॉट इट वट एवर आई टोल्ड यू अबाउट दिस कंटेंट, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास, रिविजन क्लास फ्रॉम द टॉपिक प्रीपोजिशन। सबसे पहले आपके पास प्रीपोजिशन, आपके पास रिवीजन का टॉपिक है। आपने रिवीजन में अब प्रीपोजिशन का वर्क आपको मिलेगा सेकंड सेमेस्टर मिड टर्म में, आपका ये वर्क करवाया गया था, आपको वहाँ से मिलेगा, लेकिन आज की वीडियो में हम इसे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। So basically you should know what is preposition. Well, preposition is also a part of parts of speech, one of the parts of speech. कि preposition आपके पास एक parts of speech का part है, and what is parts of speech? Well, as I told you many times कि parts of speech tell us how a word is used in a sentence and how we construct a sentence or frame a sentence. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताते हैं कि किस तरह से हमें सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना, उसमें जो वर्ड्स हैं उन्हें किस तरह से यूज़ करना है। सो बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर,
ठीक है ना. एंड व्हाट आर दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, and number 1 is noun, pronoun, word, adverb, preposition, conjunction, interjection and adjective. ठीक है, these are the 8 parts of speech in English. And now come to the preposition. We had already studied about the noun, pronoun, word, adverb and adjective in our previous term. So this term, second semester final term, we had started from the parts of speech, preposition. Okay, what are preposition? Well, preposition basically shows the relation between subject and object. Preposition आपको क्या करते हैं? Subject और object में relationship को show करते हैं. ओके, सो दिस इज़ प्रीपोजिशन. इट शोज रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वी प्लेस प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन. ठीक है ना, प्रीपोजिशन हम नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाते हैं ताकि हम बता सकें कि वो प्रीपोजिशन है. ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आपके पास ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. इफ़ अ सेंटेंस डजंट हैव अ ऑब्जेक्ट, अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा? अगर वर्ड प्रीपोजिशन ऑन आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन आपके पास ऑब्जेक्ट को बताते हैं. ठीक है, प्रीपोजिशन बेसिकली शोज द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ एनी एक्शन, यानी कि किसी काम को करने वाला. और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या कहलाता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन. ठीक है, आपको पता होगा कि रिसीवर यानी कि जिस चीज़ को वो एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, सो नाउ कम टू द एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन. ऑन आपके पास प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन ऑन आपको बताते हैं. ठीक है ना, और क्या है? ऑफ आपके पास प्रीपोजिशन में आता है. फिर ऑन हो गया. इन आपके पास प्रीपोजिशन में आता है. ठीक है ना, इन भी आपके पास क्या है? प्रीपोजिशन है. फिर आपके पास अंडर भी प्रीपोजिशन है. नियर भी आपके पास प्रीपोजिशन है. और ETC, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स आपके पास प्रीपोजिशन कहलाते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द सेंटेंस एग्जांपल्स. हाउ वी शो कि दिस जो वर्ड्स हैं ये किस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशन शो करते हैं. ठीक है, सेंटेंस एग्जांपल में आपके पास है. ठीक है, सबसे पहले आपके पास है ऑन. ऑन क्या होता है? आपके पास ऊपर. ठीक है, जिसे आप उर्दू में पढ़ते हैं ना कि को, ने, पर. ठीक है, इसी की जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑन, इन, ऑफ, बिहाइंड, अंडर, नियर. ठीक है ना, तो ये आपके पास प्रीपोजिशन कहलाते हैं इंग्लिश में. ठीक है, सबसे पहले आपके पास है ऑन. ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल. इसमें आपने क्या करना है? बुक आपके पास क्या है? सब्जेक्ट है. और टेबल आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना, ये आपके पास सब्जेक्ट है. वर्ड ऑन आपके पास प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये वर्ड आपको ऑन बता रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन. कि बुक जो सब्जेक्ट है वो टेबल पे कहाँ है? ऑन, यानी कि टेबल के ऊपर है. ठीक है ना, इसी तरह से आपके पास क्या होगा? शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है. यहाँ पे ऑफ शी, और उसकी क्या शौक को जाहिर कर रहा है. फिर आपके पास है इन. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड्स उड़ रहे हैं आसमान के ऊपर. ठीक है ना, अंडर. अंडर क्या होगा? द डॉग इज़ सिटिंग अंडर द चेयर, कि डॉग जो है वो चेयर के अंडर बैठा हुआ है. फिर आपके पास नियर. नियर यानी कि करीब. माई स्कूल इज़ नियर द चर्च, कि मेरा स्कूल चर्च के करीब है. ठीक है, सो ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन एंड दे बेसिकली शो द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर प्रीपोजिशन. और नाउ कम टू द एक्सरसाइजेज. जैसे कि अभी हमने जब कंटेंट डिस्कस किया था, आई हैव टोल्ड यू एंड टोल्ड यू अबाउट द एक्सरसाइजेज. बुक एक्सरसाइज आपके पास कौन कौन सी हैं जिसको आपने प्रिपेयर करना है?
बुक एक्सरसाइज आपके पास है 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इन एक्सरसाइज में सिंपल आपको क्या करना था, ये ब्लैंक्स आपको गिवन थे, उन ब्लैंक्स को आपने प्रीपोजिशन से पुट करना था। ठीक है, सो दिस इज़ द रिवीजन ऑफ टॉपिक प्रीपोजिशन। आई होप यू हैव गॉट वट एवर आई टोल्ड यू अबाउट प्रीपोजिशन। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग कि ये आपको रिलेशन को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ कम फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर दिस today's class next topic is conjunction. Okay, come forward to the next topic of today's class, the revision of conjunctions. Well, conjunction is also a part of one of the parts of speech. Conjunction भी आपके पास क्या है, एक parts of speech का एक part है। ठीक है, and now the question is what is conjunction? Well, basically conjunction, joining words are called conjunction, कि जो दो sentences को joining words और joining the sentence वो आपके पास conjunction कहलाते हैं। यानी कि conjunction वो words होते हैं जो किसी एक word को या फिर group of word को आपस में connect करने का काम करते हैं। All connecting or joining words are called conjunction. ठीक है, कि ज्वाइनिंग वर्ड्स आपके पास क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं पढ़ा रही थी लेकिन लाइट चली गई। ठीक है ना, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट बट द पावर वॉज गॉन, लेकिन जो पावर था वो चला गया था। ठीक है ना, नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस आर एंड, बट, और, बिकॉज, ETC। ठीक है ना, ये आपके पास वैसे तो कंजंक्शन बहुत सारे, ऑल्दो, अनलेस, यूजलेस, व्हेन, ठीक है ना, इफ़, सो, ये सब भी आपके पास कंजंक्शन में आते हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन। एंड का मतलब आपके पास होता है और, बट, लेकिन, और ये वाला और हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर गिविंग द चॉइस। ठीक है ना, जब हम किसी चीज़ की चॉइस दे रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डू यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, इज़ दिस पेंसिल योर और माइन, कि ये पेंसिल आपकी है या मेरी है। ठीक है ना, इसे हम इन सेंस में यूज़ करते हैं, बिकॉज यानी कि क्योंकि। ठीक है, और फिर आपके पास ETC यानी कि और, सो ऑन भी है, बट का मतलब लेकिन। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन। नाउ कम टू द सेंटेंस एग्जाम्पल, ताकि आपको ये और एग्जाम्पल जो है क्लियर हो जाए। For example, you and I were ठीक है ना, यू एंड आई वर क्लास फेलो, कि आप और मैं क्लास फेलो थे। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो वर्ड यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपको और आई रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे। ठीक है ना, ये मुझे यूज़ कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस यूज़ रिप्रेजेंटिंग यू। इन दोनों को, यू एंड आई को जो है किस वर्ड ने ज्वाइन करा है, वर्ड एंड ने, कि तुम और मैं, आप और मैं क्लास फेलो थे। तो इसे हम कहते हैं कंजंक्शन, क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करा है। ठीक है, फिर आपके पास है बट। He was old but active। ठीक है ना, he was old but active, यानी कि he was old, वो ओल्ड था, ठीक है ना, बट लेकिन वो एक्टिव था। ठीक है, ये हो गया आपके पास। फिर आपके पास है और, डू प्रेफर टी और कॉफ़ी। फिर आपके पास है बिकॉज, माई मदर कुडंट गो टू द मार्केट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है ना, कि मेरी मदर मार्केट नहीं जा सकी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसे हम कंजंक्शन कहते हैं, एंड दिस इज़ हाउ द कंजंक्शन ज्वाइन द टू सेंटेंसेस या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
ठीक है, कि कंजंक्शन क्या करते हैं, टू सेंटेंसेस को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कंजंक्शन। अब आ जाएं इसकी एक्सरसाइजेस पे, जिसे अभी हमने कंटेंट के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, आई एम राइटिंग द बुक एक्सरसाइजेस जिसे आपने प्रिपेयर करना है कंजंक्शन में। मैं अगेन आपके सामने इस कंटेंट में से लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने कंटेंट से प्रिपरेशन करनी है सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम की। ओके, सो द एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 आपके पास क्या है, इंक्लूडेड फ्रॉम द टॉपिक कंजंक्शन। एक्सरसाइज 1 में आपने क्या करना था, सिंपल कंजंक्शन को पिक आउट करना था, फिर 2 और 3 में आपने कंजंक्शन को पुट करना था, और 4 में आपके पास 2 कंजंक्शन के आपको सेंटेंसेस दिए हुए थे, 2 सेंटेंसेस आपको गिवन थे जिसमें आपने कंजंक्शन एंड और बट को यूज़ करते हुए 2 सेंटेंसेस को एक करना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, नाउ कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास इज इंटरजेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरजेक्शन। Well, interjection is also one of the parts of speech, and they will tell you about the sudden and strong feeling or emotion. ठीक है, इंटरजेक्शन भी आपके पास क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, एंड दे आपको क्या बताते हैं, सच वर्ड्स दैट शो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ऐसे वर्ड्स जो आपकी सडन यानी कि अचानक फीलिंग को शो करते हैं, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है ना, उससे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग समवेयर एंड यू फेल डाउन, कि आप कहीं जा रहे हो और आप गिर गए, तो आपकी जो फर्स्ट वर्ड आपके मुंह से निकलेगा आउच। ठीक है ना, वो आपके पास क्या होगी, सडन फीलिंग होगी जो आपके इमोशंस यानी कि आपके जज्बात को शो कर रहा होगा। ठीक है, इट शोज़ sudden feeling and strong इमोशंस। ठीक है, ये आपको क्या करता है, सडन फीलिंग यानी कि अचानक से जो आपको फील होता है उसे शो करता है, जैसे कि आउच आपके पास सडन फीलिंग में है। और स्ट्रॉन्ग इमोशन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अलास आप कब यूज़ करते हो, व्हेन यू हेयर अ बैड न्यूज़। ठीक है ना, जैसे कि वाव आप क्या कब यूज़ करते हो, व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल थिंग। फॉर एडमायरेशन के लिए आप यूज़ करते हो। ब्रावो भी इवन क्या आप एडमायरेशन के लिए यूज़ करते हो। हुर्रे, ठीक है ना, हुर्रे आप कब यूज़ करते हो, जब आपको कोई एक्साइटमेंट में या फिर फीलिंग ऑफ जॉय में भी आप इसे यूज़ करते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, ouch, and always remember कि after the interjection we put punctuation mark कौन सा, exclamation mark जो आपके पास punctuation mark में आता है, इसे हम लाजमी पुट करते हैं after the interjection। ठीक है, ouch के बाद आपके पास है हुर्रे, हुर्रे के बाद आपके पास है वाव। ठीक है, वाव हो गया, हुर्रे हो गया, और आपके पास कौन कौन से होंगे, अलास, और फिर आपके पास ETC यानी कि बहुत सारे हैं, हेलो, टुक, हे। ठीक है ना, ये भी आपके पास क्या है, जिसको शो करते हैं ब्रावो, इंटरजेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है आउच शो योर सडन पेन। ठीक है ना, आपके सडन पेन को आउच शो करता है। फॉर एग्जांपल, आउच आई हर्ट माय नी। ठीक है, देन आपके पास हुर्रे, वी यूज़ दिस एज ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है ना, खुशी को या फिर एक्साइटमेंट को शो करता है। फॉर एग्जांपल, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे इट्स अ हॉलीडे टुमारो, हुर्रे स्कूल्स आर ओपनिंग। ठीक है ना, फ्रॉम जून इंशाल्लाह। देन वाव कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी यूज़ वर्ड वाव व्हेन वी सो अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है ना, जब हम किसी बहुत अच्छी चीज़ को देखते हैं, किसी बड़ी रॉक को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वाव व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है ना, वाव व्हाट अ बिग माउंटेन।
तो इस वक्त हम जब एडमायरेशन में होते हैं, किसी चीज़ को एडमायर कर रहे होते हैं, हम वाव यूज़ करते हैं। फिर आपके पास है अलाज। वी यूज़ वर्ड इंटरजेक्शन अलाज इन सैडनेस, ठीक है ना, जब हम उदासी वाली कोई न्यूज़ सुनते हैं जब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अलाज द डॉग इज़ डेड, ठीक है ना, अलाज द पुअर पेशेंट इज़ डेड, कि जो डॉग है वो बेचारा मर चुका है, ठीक है, या फिर जो पुअर पेशेंट है वो मर चुका है। तो इस तरह से द सिंगर इज़ नो मोर, अलाज द सिंगर इज़ नो मोर, ठीक है। तो हम उसको पेन में जब हमें कोई सैड न्यूज़ मिलती है, हम वहाँ पे इन्हें यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन को, ठीक है। अब आ जाएँ इसकी बुक एक्सरसाइजेस पे। बुक एक्सरसाइज सिर्फ आपके पास 1 है और आपके पास 2 है, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू और शोन यू इन द बुक बुक एक्सरसाइज नंबर 1 इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट 1 एंड बी। व्हाट टू डू इन ए में आपने क्या करना है, सिंपल आपको इंटरजेक्शन क्या करने हैं, पिक आउट करने हैं सेंटेंसेस में से। बी पार्ट में आपने क्या करना है कि आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपने उसमें उनको पुट करना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 2 में भी सिंपल आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लैंक्स हैं, आपने चूज़ करना है कि किस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो दिस इज़ द रिविजन ऑफ ग्रामर टॉपिक, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आई होप यू हैव गॉट दिस। नाउ ओपन योर कंटेंट। आई एम शोइंग द वर्ड ऑफ दिस टॉपिक that is mentioned in your content, so you should know from where the work is mentioned in your content, so it will be more easy for you to memorize, to understand and to do that work in your copy, ठीक है। बट बिफोर द वर्क ऑफ प्रीपोजिशन वी हैड यू डिड दिस वर्क इन द सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म इन योर फिजिकल क्लासेस, ठीक है। प्रीपोजिशन का वर्क आपको कहाँ से मिलेगा, सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म में, ठीक है, जब आपकी फिजिकल क्लासेस में आपको करवाया गया था। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का वर्क आपको मिलेगा सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल कंटेंट में से। मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ पर है और किस तरह से आपने करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज। इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव ओरल क्वेश्चन आंसर टुडे। As I told you, our subject is divided into 2 parts. One is for learning and the second one is for your oral practice. For oral practice, we have 4 kind of different activities. For example, conversation, talk and hear, listening, oral question answer and presentation. In today's class, I will talk about the oral question answer. Well, oral question answer is just like an interview oral question answer. Someone asks a question and you will reply about your choice, about your mentality, about your personal choices, ठीक है ना, जिसमें आप अपने चॉइस के बारे में कुछ भी बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इफ़ आई आस्क यू अबाउट व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, सो यू विल टेल मी अबाउट योर फेवरेट कलर, वट एवर द कलर यू लाइक, यू विल टेल मी अबाउट दैट कलर, कि टीचर आई लाइक अ रेड कलर, टीचर आई लाइक ब्लू कलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू अबाउट योर फादर, वट इज़ योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं, तो यू विल टेल मी अबाउट योर फादर, कि टीचर माई फादर वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ बिजनेस मैन, और he is an engineer, sorry, my father is engineer, my father is doctor and he is doing a business, ठीक है, वो business कर रहे हैं। ये जो भी कुछ होगा related to this, you will tell about your father, your choice, your mentality, ठीक है। आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें आंसर करना होता है। सो नाउ कम टू द कंटेंट, आई विल शो यू द वर्क। जी, दिस इज़ योर कंटेंट। इन दिस कंटेंट एज आई टोल्ड यू कि सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन वर्क इज़ ऑल्सो मेंशन प्लस सेकेंड सेमेस्टर फाइनल कंटेंट, ठीक है ना। वी हैड डिस्कस द सेकेंड सेमेस्टर फाइनल कंटेंट, नाउ कम टू द सेकेंड सेमेस्टर फाइनल वर्क, ठीक है। आपके पास वर्क में आज हमने जो पढ़ा है इंटरजेक्शन और कॉन्वर्सेशन कंजंक्शन के टॉपिक पे। तो ये आप इसको पेज टर्न द पेज एंड कम टू योर सब्जेक्ट। योर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज ELT। Here the work is, as you can see, page number 2, English language teaching ELT. Number 1 is from the grammar portion, interjection, कि आपने interjection का बताना है कि what is interjection? Words that expresses sudden emotions or strong feelings are called interjection, कि ऐसे वर्ड जो आपकी सडन इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउच, हुर्रे, वाओ, अलास, ETC। सेंटेंस एग्जाम्पल्स आर, आउच, अ बी हैज स्टंग मी, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, wow, this painting looks amazing, alas, the patient is dead. Then there is a solution of exercise 1 and
2, ठीक है ना, आपके पास सोल्यूशन है. यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज इन योर बुक फ्रॉम दिस सोल्यूशन. आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है इस सोल्यूशन को देखते हुए, ठीक है. देन आपके पास है, ठीक है, ये आपने काम करना है. फिर आपके पास क्या है कि अब आ जाएं आप लोग ओरल क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम आवर लैंग्वेज पोर्शन. जी, द वर्क ऑफ टॉपिक कंजंक्शन आपको मिलेगा सेकंड सेमेस्टर मिड टर्म में. फिजिकल क्लासेस में आपको करवाया गया था, आप वहाँ से लेंगे. फाइनल में आपके पास इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है. नाउ कम टू द पेज नंबर 16. द सब्जेक्ट इज़ ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT एंड कम टू द oral question answer, ठीक है. there are almost 10 questions are given to you. You will give the reply according to your choice, ठीक है ना. I am reading the question, so you will be able to solve or to give the answer according to your ability. The question number 1 is, yes, the question number 1 is, I want to have healthy teeth, what should I do? यानी कि इसमें आप एक राय पूछ रहे हैं, ठीक है ना. आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि आई वांट अ हेल्दी टीथ, मुझे हेल्दी टीथ चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है. यू शुड ब्रश योर टीथ 3 times a day, कि आपको 3 टाइम अपने दांतों में ब्रश करना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़, आई वॉन्ट टू बी फिट एंड हेल्दी, व्हाट शुड आई डू, कि मुझे हेल्दी और फिट रहना है, इसके लिए मैं क्या करूँ. इन दिस क्वेश्चन योर फ्रेंड इज़ आस्किंग अबाउट द फिटनेस एंड हेल्दीनेस. सो आपने क्या उसको रिप्लाई दिया, यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. ऑब्वियसली इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ फिट एंड हेल्दी, तो एक्सरसाइज इज़ वेरी मस्ट फॉर दिस. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज़, डू यू हैव अ पैट. पैट, क्या आपके पास पैट हम कहते हैं जो हम पालतू जानवर होते हैं, ठीक है ना. जैसे कि कुछ लोगों के घरों में कैट्स होती हैं, पैरोट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें. सो इफ़ यू हैव अ पैट देन यू कैन से यस आई हैव अ पैट, इट्स नेम इज़ डैश, ठीक है. कि अगर आपके पास पैट है तो आप बताओगे, जैसे कि अब जो भी नाम है वो भी बता सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव अ पैट देन यू सेड नो आई डोंट हैव अ पैट, कि मेरे पास पैट नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू लाइक ईटिंग, कि आपको कौन सा खाना आपको खाना पसंद है, ठीक है. आई लाइक ईटिंग चाइनीज़ फूड, वट एवर द फूड यू लाइक टू ईट यू मैंशन हेयर. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ईटिंग चाइनीज़ फूड, आई लाइक ईटिंग देसी फूड, आई लाइक ईटिंग फास्ट फूड, जो भी वट एवर द फूड यू लाइक यू विल मैंशन दैट चॉइस हेयर. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू हेट ईटिंग, कि कौन सा फूड है जो खाना आपको पसंद नहीं है, ठीक है. आई हेट ईटिंग फास्ट फूड, इट्स अनहेल्दी. और यू कैन से आई हेट मोस्टली चिल्ड्रन डोंट लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड्स. सो वट एवर फूड यू डोंट लाइक टू ईट यू विल मैंशन हेयर. दैन द क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट्स योर फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटी, कि आपकी फ्री टाइम एक्टिविटी क्या है. वेन एवर यू गेट द फ्री टाइम, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो व्हाट शुड यू डू, आप उसमें क्या करते हो और आपको उसमें क्या करना पसंद है, ठीक है. जो भी है आप वो बताओगे. फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटी इज़ डैश, माई फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, माई फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटी इज़ रीडिंग बुक्स. ओके, फिर आपके पास आए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. सही है. यस, व्हाट्स योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, कि आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है. माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज़, जो भी आपका है आप यहाँ पे नेम मेंशन कर देते हैं, करेंगे, ठीक है ना. इफ़ यू लाइक अ कार्टून टॉम एंड जेरी, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. कोई डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम है जो आपको पसंद है, या वट एवर यू लाइक टू वॉच प्रोग्राम ऑन TV यू विल मेंशन हेयर. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज़, हाउ ऑफन डू यू वॉच योर फेवरेट TV प्रोग्राम, कि आप कितने अरसे में अपना, या फिर आप कब अपना फेवरेट TV प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है. आई वॉच माई TV प्रोग्राम डेली, कि मैं रोज़ाना देखता हूँ, या वंस अ वीक देखता हूँ, या एवरी डे देखता हूँ, ठीक है. यानी कि डेली देखता हूँ. जब भी आप देखते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. देन नंबर 9 इज़, आर यू अफेयर्ड ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, क्या आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, के स्कूल में आपके पास असेंबलीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें स्टूडेंट को हम लेके जाते हैं जो असेंबली को कंडक्ट करते हैं, ठीक है. रिसाइटेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है. अगर आपने उसमें जाने में डर नहीं लगता है, सो आप क्या कहेंगे, येस आई एम ऑलवेज. अगर आपको डर लगता है तो आप क्या कहेंगे, येस आई एम ऑलवेज अफेयर ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, कि मुझे हमेशा स्टेज पे जाने से डर लगता है. इफ़ यू डोंट अफेयर देन यू सेंड
then you can give this answer, no, I am never afraid of being on stage, कि मुझे कभी भी स्टेज पे जाने से डर नहीं लगता. Then the question number 10 and the last question is, what's your favorite film? ठीक है, in this question they are asking about your favorite film. Then you will tell your favorite film. My favorite film is dash. Whatever film you like to watch, you will mention that name. For example, my favorite film is Harry Potter. My favorite film is Spider-Man. Whatever film you like to watch, you will mention the name here. Okay students, so this was the topics or our today's class, revision classes. Now I am giving you the assessment. ठीक है, regarding this class today I will give you the assessment. You have to solve this assessment by yourself, but so you will prepare for second semester final exam. ठीक है, try to do this, try to solve this assessment by yourself. ठीक है ना, after memorizing this assessment is based on today's class topic. What we learn in today's class topic, we had revised preposition, conjunction, interjection, and in our oral language we have oral question answer. So this assessment is based on those topics. So you will solve this assessment sheet by yourself in your copy. ठीक है, assessment number 1, MCQs. First one is MCQs. Number 1 is dash is conjunction. ठीक है, there is a choice near, because, wow. ठीक है, इसमें से जो भी आपको लगता है कंजंक्शन है आपने यहाँ पे मेंशन करना है. देन सेकंड MCQs इज इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट. वो कौन सा इंटरजेक्शन है जो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट को, जॉय को, खुशी को शो करता है. ठीक है, अभी आपको मेंशन किया गया है, आपने इसे उसके अकॉर्डिंग फिल करना है. देन नंबर थर्ड वन इज पिक प्रीपोजिशन. A sentence is given to you. You will pick the preposition in this sentence. The sentence is oranges grow in Mirpur. Oranges grow in Mirpur. जो भी आपको लगता है आपके पास preposition इस sentence में, उसे आप pick करके यहाँ mention करेंगे. Then number 4 is pick conjunction. Now the sentence is given to you. You will pick the conjunction in this sentence. Go away or be quiet. Go away or be quiet. ठीक है, जो भी कंजंक्शन है इसमें वो आप यहाँ पे पिक करके लिखेंगे. देन आपके पास है डैश व्हाट एन अमेजिंग पेंटिंग पुट इंटरजेक्शन. ठीक है ना, कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आपके पास कंजंक्शन इंटरजेक्शन यूज़ होगा, आपने वो बताना है कि अमेजिंग पेंटिंग यानी कि आप किसी चीज़ को एडमायर कर रहे हो. तो जब हम किसी चीज़ को एडमायर करते हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है. Then the last one is dash shows a sudden feeling. ठीक है ना, dash show relation between subject and object. वो क्या चीज़ है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप को शो करती है. प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन आपने यहाँ पे मेंशन करना है. देन कम फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन, short question answer. Fill in the blanks with suitable preposition. I have given you the 10 blanks. You will put the correct preposition in this blank. Number 1 is I live dash Karachi. ठीक है, number 1 is I live dash Karachi. Second one is she went dash market. Who is standing dash the door. The cat jumped dash the wall. Fifth one is look dash me. 7, there are 2 candles dash the cake. 7 one is how long can we live dash air. 8 one is April's come dash March. 9th one is the river flows dash the bridge. Last one is Monday is the first day dash week. ठीक है, इसमें आपने जो भी आपको सूटेबल प्रीपोजिशन लगते हैं आफ्टर सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस इन योर बुक, आपने इस असेसमेंट को सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ कम फॉरवर्ड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. पुट
कंजंक्शन, ठीक है, आपको कंजंक्शन वर्ड्स दिए गए हैं, फिर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने बताना है कि किस में कौन सा कंजंक्शन पुट होगा. द गिवन कंजंक्शन वर्ड्स आर बिफोर, बिकॉज, सो, इफ, और, व्हेन, एंड, बट. बिफोर, बिकॉज, सो, इफ, और, व्हेन, एंड, बट. ठीक है, आपने बताना है कि किस ब्लैंक में कौन सा आएगा. ठीक है, एक वर्ड एक ही टाइम रिपीट होगा, सेकंड टाइम रिपीट नहीं होगा. ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है. नंबर 1 इज माई मदर कुडंट गो टू मार्केट डैश इट वॉज रेनिंग. सेकेंड वन इज ही वर्क हार्ड डैश ही लॉस्ट द रेस. थर्ड वन इज सारा डैश फातिमा आर sisters. Fourth one is do you prefer tea dash coffee. Fifth one is you will get the prize. You will get the prize dash you work hard. Sixth one is it rained dash I took a carriage. Seventh one is I ran away dash he could catch me. Last one is we drink water dash we get thirsty. ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, डिफाइन इंटरजेक्शन. आपने इंटरजेक्शन को डिफाइन करना है, यानी कि उसकी डेफिनेशन लिखनी है. जो भी आपको सॉल्यूशन में गिवन है आपने उसको अच्छे से मेमोराइज करने के बाद वो लिखनी है. फिर आपने एग्जांपल्स देनी है फॉर फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, कि जो भी इंटरजेक्शन वर्ड फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट को शो करता है, अभी हमने क्लास में डिस्कस किया है, उसे आपने एग्जाम्पल्स में लिखना है, सैडनेस में लिखना है और सडन पेन में, यानी कि वर्ड बताना है और फिर आगे सेंटेंस एग्जाम्पल देनी है. फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, सैडनेस एंड सडन पेन. ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है इंटरजेक्शन की. किस किस की? फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, सैडनेस एंड सडन पेन. देन डिफाइन कंजंक्शन, आपने कंजंक्शन को डिफाइन करना है और फिर लास्ट में आपके पास है पिक आउट द इंटरजेक्शन. आपने इंटरजेक्शन को पिक करना है. नंबर 1 इज ओ इज द चाइल्ड डेड. अलास द पुअर डॉग इज डेड. थर्ड वन इज हुर्रे इट्स अ हॉलीडे टुमारो. फोर्थ वन इज द बेबी इज स्लीपिंग. फिफ्थ वन ओ डियर द डॉग्स आर बार्किंग. ठीक है, सो दिस इज द असेसमेंट. यू विल सॉल्व दिस असेसमेंट बाय योरसेल्फ after preparing the topic of today's class. This assessment is based on today's revision class. So that was your assessment. वो था आपका assessment. You have to solve this assessment by yourself after revising today's class topic. ठीक है, आज की क्लास के टॉपिक को रिवाइज करने के बाद अच्छे से आपने इसको सॉल्व करना है. Now take out your diary and note your homework. Well, the today's class homework is solve असेसमेंट 1. ठीक है, कि आपने असेसमेंट 1 को सॉल्व करना है. दिस असेसमेंट इज कंसिस्ट ऑन टुडेज क्लास टॉपिक. इफ you have to prepare this assessment so that you will prepare for second semester final exam. These video classes are these classes that we are conducting, जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, the purpose of conducting the purpose of taking these online video classes is simple, that we have to prepare that we are preparing you for second semester final exam. ठीक है, हम आपको second semester final exam के लिए prepare कर रहे हैं. So follow the video and solve the worksheet by yourself after learning the work of today's class topic. So that's it for today's class topic. What we learned in today's class topic, today we had started the second semester final term revision and we had revised 3 topics from grammar portion. Preposition shows the relation between subject and object, for example on, in, of, under, near, etc. Then conjunction, what are conjunction? Joining words are called conjunction. Then interjection, sudden feeling or emotion, the word that show the sudden feeling and emotion are called interjection. Then in our oral practice we have oral question answer. So that's it for today's class. I hope you have got everything. If you have any problem, watch this video again and again so that your problem can be resolved. We will meet in our next online class. Okay, so till then take care. Allah Hafiz and solve the assessment
Goodbye.